Very good morning, class 6th. Today we are going to read the poem The Sportsman. So this poem is by A.D. Braham. And now the sportsman. What do you understand by the sportsman? A person who plays any sport. He can be a cricketer or a footballer, or he can be any other sport. So as you all know that sports is of many kinds. The person who plays any sport is known as the sportsman. So in this we are going to read about the poem Sportsman. In this the writer is the poet. The poet is trying to give you some idea of life. In this poem, in the beginning he's telling you that that in life there is often many times in life there are the situations that we don't want to run away, and we just want to leave that situation and just have fun. But but the person who is determined to achieve his aim, whatever he has promised to himself, so that person will definitely achieve that aim if he remains stable, if he remains strong willed to achieve that aim. So in this poem he's just pointing on the focusing on the view on the theme that how many hardships there should be in a life. If you have promised yourself that you have to achieve the same, so you should go for it. You should not think that that lot of struggle is there in achieving that aim. अगर आपने मन में एक बार ठान लिया है तो आपको वो चीज़ें, आपको वो गोल अचीव कर लेना चाहिए, चाहे आपको रास्ते में कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आएँ या कितनी भी हर्डल्स आएँ, आपको उस गोल को अचीव करना है. So with this we start with the poem. You will read with me. The road was hilly, the wind was strong. The young laddie gallantly struggled along, with never a glance at the downward way, where his comrades shouted and laughed in a play. Though he longed to be there and join the sport, in his brave little heart he crushed the thought. If I went, he said, I should certainly rue it, when you have promised a thing and you are bound to do it. So in this poem, the first paragraph, he is telling you that the road was hilly. Means road was hilly कि road hilly थी, उतार चढ़ाव बहुत थे उसमें. प्लेन स्मूथ रोड नहीं थी, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव थे. मीन्स अब हिली थी तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे 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 करके लाइफ चल रही थी. यहाँ तो वो क्रिकेट की बात कर रहे हैं. तो ये सेइंग कि द रोड वाज हिली मीन्स रफ रोड, स्मूथ नहीं थी. द विंड वाज स्ट्रॉन्ग, और जो विंड चल रही थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. द विंड वाज ब्लोइंग वेरी हैवीली. The laddie gallantly. Laddie here means a lad, a young fellow. Laddie को यहाँ पे young fellow की तरह बोला है उन्होंने. Gallantly means showing courage. वो घबरा नहीं रहा है उस सड़क की, उस हिल की ऊबड़ खाबड़ जगह से. And he is moving forward, whether he is struggling it to move ahead, climbing ahead, but he is going. वो स्ट्रगल कर रहा है. स्ट्रगलिंग along means धीरे धीरे स्ट्रगल करके वो ऊपर चढ़ रहा है. ही मीन्स टू से दिस कि रास्ते में बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं, हर्डल्स आते हैं, बट हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है, हमें किसी और चीज़ से अट्रैक्ट होके अपना रास्ता नहीं भटकना है. विद नेवर अ ग्लांस एट द डाउनवर्ड वे. With never a glance at downward way, where his comrades shouted and laughed in a play. So he's saying that we should not look here and there. अगर हम अपने रास्ते से चल रहे हैं तो हमें सीधा ऊपर ही देखना चाहिए, सामने देखना चाहिए.
हमें इधर उधर या नीचे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है ध्यान भटक सकता है। वेयर हिज कॉमरेड्स शाउटेड एंड प्ले मीन्स उसके जो फ्रेंड्स थे वो कोई और गेम खेल रहे थे और वो इंजॉय कर रहे थे उस गेम को, दूसरे स्पोर्ट को, और वो इसको बुला रहे थे, शाउट करके बुला रहे थे कि तुम भी आ जाओ, कम ऑन लेट्स जॉइन अस। और उसकी एंड ही वॉज लॉन्गिंग टू बी देयर। तो ही सेइंग कि जो ये स्पोर्ट्स मैन है इसकी बहुत इच्छा होती है कि स्ट्रांगली उसकी विश होती है कि येस ही शुड ऑल्सो गो देयर एंड जॉइन द स्पोर्ट, बट हिज ब्रेव लिटिल हार्ट ही क्रश द थॉट। बट अगेन ही थॉट दैट कि अगर मैं अपनी प्रॉमिस तोड़कर अपने पाथ से मैं मिसलेड हो गया, एस्ट्रे हो गया, तो जो मैंने गोल अचीव करना है वो मेरा बीच में ही रह जाएगा। तो मुझे किसी भी फॉल्स उसमें अट्रैक्शन में नहीं आना है और मुझे अपना गोल अचीव करना है। अगर जो मैंने अपने से कुछ एक चीज़ प्रॉमिस की है, दैट आई हैव टू अचीव इट, means wo that I have to certainly do that. If I have promised something that I have to achieve this thing, so I will achieve it and I should not be led astray on my path. कोई भी जो है अट्रैक्शन मुझे भटका नहीं सकती रास्ते से। उसके हार्ट ने उसको बोला कि नो, यू शुड नॉट गो देयर एंड जॉइन योर फ्रेंड्स बिकॉज यू हैव सम अदर थिंग टू डू। तुम्हें कुछ और काम करना है जो ज़्यादा ज़रूरी है। द पिच वॉज स्लिपरी एंड द बाउलिंग हार्ड, सो ही रीच्ड हिज फील्ड। अपनी फील्ड पे पहुंचता है पिच पे। पिच कैसी थी? स्लिपरी थी, ठीक है, एंड द बाउलिंग हार्ड, और जो बाउल कर रहा था वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, मतलब बहुत तेज़ बाउलिंग कर रहे थे। अ वेरी बैट्समैन स्टूड ऑन द गार्ड, वहाँ पे जो बैट्समैन खड़ा था वो बहुत टायर्ड लग रहा था, बहुत टायर्ड लग रहा था। एंड ऑन अ गार्ड मीन्स ही वॉज वेटिंग फॉर हिज बॉल, कि सामने से जो बाउलर है वो मुझे बॉल गिरेगा, तो वो ध्यान से वहाँ पे खड़ा उनको बैट्समैन बाउलर को देख रहा था। He'd come to the field with an aching head. So he had come to the field with an aching head means he was feeling very tired and his head was also aching. He had come to the field with that aching head कि उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी. He wanted to throw his bats and just go and take rest. But the game depended on him, they said. The poet wanted to leave the match, leave the game and just go and relax. But everybody was saying that the responsibility of winning the game was on him and it was his responsibility. Everybody was looking forward that he should win the match. He should win this game in their favor. So the sun burned hot on his tired back. मोर जो सनलाइट थी वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इट वॉज टू हॉट एंड हिज बैक वॉज बर्निंग। उसकी जो पीठ थी धूप से बहुत ज़्यादा बर्न हो रही थी। एंड जस्ट फॉर अ मोमेंट ही थॉट हिट स्लैक, और फॉर वन मोमेंट उसको लगा कि उसने वो लूज़ कर जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ही विल लूज़। He was sorely tempted to lose a wicket and he was thinking that he was so highly tempted, he was so highly attracted कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये विकेट नहीं ली जाएगी, I think I will lose this wicket. That would be easy, he thought, but it wouldn't be a cricket. So when this thought came to his mind कि that he would lose his wicket, so at one moment he thought that he would not be able to win this game, as everybody was saying that everything, the game depended on him, so all the responsibility falls on his shoulder. So for one moment he thought that he should quit the game and go, and he would lose that wicket. For that moment he thought that it would be easy to quit the game and leave, but it wouldn't be the cricket. But अगर वो गेम छोड़ के चला जाता है, अपने जो टीम मेट्स हैं उनका जो विश्वास है वो तोड़ देता है, तो फिर वो क्रिकेट नहीं कहलाएगा, फिर तो मतलब वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं हुई।
अगर मैं गेम बीच में छोड़ के चला गया, जबकि सबको विश्वास मेरे पे है, द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी of winning the game is on me, and at that moment if I leave the match and quit the game and move out, so that would not be fair and it would not be the sportsmanship. So now he says that in life also sometimes things won't go well. तो इसी तरह वो कहता है पोइट कि लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब सब कुछ ठीक नहीं होता है, एवरीथिंग गोज़ अगेंस्ट अस। सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकते, हम दुखी हो जाते हैं, हम बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। सो व्हाट ही वांट्स टू स्टे हियर इज़ दैट वी शुड नॉट गिव अप। हमें चाहे हम धीरे चलें या चाहे गिर जाएं, गिर के हमें रुकना नहीं है, हमें चाहे धीरे धीरे क्रॉल करते हुए चलना है। धीरे धीरे क्रॉल करो, फिर आप धीरे धीरे उठोगे, फिर आप चलना शुरू करोगे और फिर आप भागना शुरू करोगे। ही मीन्स टू से दैट वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग। हमें ट्राई करते रहना चाहिए लाइफ में उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने का। एंड ड्यूटी इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड टू स्पेल। तो वो यही कह रहा है और पोइट यहाँ पे कि हमें अपनी ड्यूटीज़ कई बार परफॉर्म पूरी करनी पड़ती हैं, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो, विलिंगली करें या ना करें, बट हमें अपनी ड्यूटीज़ तो करनी पड़ती हैं। इट इज़ अ हार्ड वर्ड टू स्पेल मीन्स कहने में बहुत इजी है ड्यूटी, बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका मेंटल स्टेट इतनी ख़राब होती है कि आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, बट स्टिल यू हैव टू डू दैट। सो हियर इट मीन्स दैट बट द फेलो हु सेट्स बिफोर हिज आइज़, हु सेट्स द सेट बिफोर हिज आइज़ मीन्स जो इंसान अपने सामने एक गोल बना के रख लेता है कि ये मेरा एम है और मैंने इसे अचीव करना है, अ हाई आइडियल एज द वर्दिएस्ट प्राइज मीन्स उसके सामने उसने मन में ये सोच लिया दैट आई हैव टू अचीव दिस गोल और इसको अचीव कर लूँगा हाई आइडियल को, तो यही मेरा सबसे बड़ा प्राइज़ होगा। वर्दिएस्ट प्राइज़ मीन्स इससे ज़्यादा वर्दी कुछ नहीं होगा। तो अगर जो इंसान अपनी आइज़ में एक गोल सेट कर लेता है और उसको लगता है कि ये मुझे एट एनी कॉस्ट अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, विल शन द इविल एंड फॉलो द गुड, तो वो इंसान, दैट पर्सन विल ऑलवेज अवॉइड द इविल। वो हमेशा जो हमारी टेम्पटेशंस हैं, टेम्पटेशन होता है जब हम अपने कोई ऐसी चीज़ें जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, वो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं, उनको हम बोलते हैं टेम्पटेशंस। तो वो यहाँ पे द पोएट वांट्स टू से दैट वी शुड अवॉइड ऑल द टेम्पटेशंस, वी शुड नॉट लेड एस्ट्रे। हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं है। वी शुड फॉलो द गुड, हमें हमेशा अच्छे रास्ते पे चलना है। टू से हिमसेल्फ एज ब्रेव लैड शुड, and we have to keep ourselves saying that yes we are brave and we can do that, we can achieve that। हमें अपने आप से ये कहते रहना है। जो ब्रेव लैड होता है, ब्रेव लैड मीन्स ब्रेव बॉय, लैड मीन्स बॉय होता है, इट ओनली नीड्स ग्रिट एंड आई मस्ट नॉट लैक इट। ही सेज दैट जो ब्रेव पर्सन्स होते हैं दे ऑलवेज हैव दैट एंड्योरेंस एंड द डिटर्मिनेशन, द विल पावर टू डू दैट थिंग वट एवर दे हैव, if they have promised themselves to do this thing, so they will definitely do that come what may। कुछ भी हो जाए, अगर आपने अपने आप से एक प्रॉमिस किया है वो आप फुलफिल करते हैं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट यू डू दैट। सो द वर्ल्ड इज अ हार्ड नट बट आई मीन टू क्रैक इट। सो हियर ही वॉन्ट्स टू से दैट जो हमारा वर्ल्ड है, जो ये संसार है, ये कोई ईजी चीज़ नहीं है। In life we have to face, we have to go through so many problems, so many hurdles and obstacles, and we have to crack it means here he wants to say world is a hard nut। hard nut means जैसे हमारे जो नट्स होते हैं कुछ बहुत हार्ड होते हैं, नट्स मीन्स ड्राई फ्रूट्स हमारे जो होते हैं कुछ इतने हार्ड होते हैं कि उनको तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना।
तो इसीलिए सिम्बॉलिकली वो लाइफ का कह रहा है, इस वर्ल्ड की बात कर रहा है कि जो वर्ल्ड है वो भी एक हार्ड नट की तरह है जिसे क्रैक करना डिफ़िकल्ट है। बट अगर हम ये ठान लें कि हमने ये करना ही करना है, ये काम हमने ये चीज़ अचीव करनी ही है अपनी लाइफ में, हमने गिव अप नहीं करना है, तो हम वो डेफिनेटली कर लेंगे. The world is a hard nut, but I mean to crack it. So, in the end, the poet is saying that no doubt it is very difficult for me to carry on with my struggle and to achieve this point. If I have promised a thing, so I am bound to do it. So, I will crack it means चाहे कितनी भी मुश्किलें आए लाइफ में, मैं उसे क्रैक कर लूँगा, मैं उसे सर पास कर लूँगा एंड आई विल बी सक्सेसफुल एट लास्ट. So the summary of the poem is that we should not give up, but we should not give up the struggle of life. If we have promised something that we have to, if we have promised something to ourselves, that then we are bound to do it. हमें वो चीज़ ज़रूर अचीव करनी चाहिए, चाहे उसमें हमें कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, चाहे हमें उसमें कितनी भी टेम्पटेशंस मिले कि आप ये छोड़ दो, ये ज़्यादा बेटर है, ये मुश्किल लग रहा है, तो हम ये छोड़ के ये ले लें, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. लाइफ में जो है बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं. जो हमें अच्छा लगता है हमें वो कई बार छोड़ना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमारी ड्यूटी हमें कुछ और बोलती है और हमारी अट्रैक्शन किसी और तरफ होती है. बट हमें ड्यूटी करनी पड़ती है, चाहे हम उसे करने में विलिंग हैं या नहीं हैं. सो द पोएट हियर मीन्स टू से दैट just as the game depended on him and he had to play for that his team and he had to win the match, similarly in life there are many situations, in many situations you feel very much trapped, you could not find the path, but you have to follow the good and you have to shun the evil, and definitely you will be successful at the end.